Okay, so good morning, and as you know that we are discussing a topic degrees of freedom, and in the last lecture we have a basic idea about degrees of freedom. Okay, and we have defined as zero order mechanisms, first order mechanism, second order mechanism, third order mechanism. So these things we have discussed in the last lecture. Any one of you can show me whether the sixth order mechanism can exist or not? Can you answer? Why sixth order mechanism is not possible? Okay, so I think no one is answering. Am I audible to you? Just wait. Okay, so any one of you can answer the question. What is sixth order mechanism? What is sixth order mechanism? Can you answer? Sixth order mechanism? No one can answer it. So sixth order mechanism is that mechanism which contains six restraints और six constraints. ठीक है, 6 constraint अगर उसमें होते हैं तो वो sixth order mechanism होगी. और sixth order mechanism पॉसिबल नहीं है बिकॉज अगर किसी भी बॉडी के जो कंस्ट्रेंट्स आपने 6 के 6 अगर अप्लाई कर दिए, इसका मतलब वो बॉडी मूव नहीं कर सकती, वो फिक्स बॉडी हो जाएगी. और जब वो बॉडी फिक्स होगी दैट इट कैन नॉट हैव रिलेटिव मोशन, और जब रिलेटिव मोशन होगा तो मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं होगी. ओके, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर. सो आई हैव डिस्कस्ड these things in the last lecture, and I have already defined the degrees of freedom of a mechanism. So degrees of freedom of a mechanism is defined as the number of independent relative motion among the rigid bodies. Okay, so this is basically we have defined in a number of ways what is the degrees of freedom of a mechanism. Degree of freedom of a mechanism is defined as a simultaneous control of the relative motion of the pairs, so that the mechanism can be used for some useful engineering purposes. Okay, so these things we have discussed in the last lecture. You can see the definition over here. You can say over. Okay, ये देख सकते हो ना, degree of freedom is the number of input parameters, usually pairs, which must be independently controlled in order to bring the mechanism into a useful way. So one definition is this one, and another is this that I want to show you, that is degree of freedom of a mechanism defined number of independent input parameters required to bring the mechanism into a useful engineering purposes, or this is right over obviously. So the degree of freedom of a mechanism is the number of independent relative motions among the rigid body, means how many relative motions are possible among the rigid body that we are using in a particular mechanism. Okay, so you have a basic idea about that because I have already discussed these things in the last lecture. So as you know, whenever we are considering a mechanism that contains number of links, that contains number of pairs. Okay, so depending upon the number of links, depending upon the number of pairs, it is possible to find out the degrees of freedom of a particular mechanism. किसी भी mechanism की degree of freedom अगर हमें उस लिंक उस मैकेनिज्म में कितनी लिंक हैं, कितने पेयर हैं, ये सारी चीजें अगर हमें पता है और पेयर किस टाइप का है, अगर ये सारी चीजें पता है तो हम उस मैकेनिज्म की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बता सकते हैं. ठीक है, उस मैकेनिज्म के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बता सकते हैं कब, जब अगर हमें उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में कितने लिंक हैं ये पता हो और उस मैकेनिज्म में कितने पेयर्स बन रहे हैं और किस टाइप के पेयर बन रहे हैं. ऐसा अगर पता होगा देन वी कैन इजीली फाइंड आउट the degrees of freedom of a mechanism that you can see here. Okay, so it is possible to determine the number of degrees of freedom of a mechanism directly from the number of links and the types or number of joints that it contains. Okay, so we will be just deriving certain formulas, we will be having some relations for that. Okay, but because when now we are considering the space mechanism. ठीक है, देखो दो टाइप के मैकेनिज्म है. एक होती है स्पेस मैकेनिज्म जिसमें किसी एक बॉडी के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रिलेटिव मोशन हो सकते हैं वो 6 हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशन.
ठीक है, 6 इंडिपेंडेंट मोशंस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लेन की बात करेंगे तो किसी भी बॉडी के पास 3 इंडिपेंडेंट, मैक्सिमम 3 इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशन हो सकते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशन। अभी बात करते हैं तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अगर हम पहले बात को फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्पेस, ठीक है, स्पेस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं अभी हम, स्पेस मैकेनिज्म। और स्पेस मैकेनिज्म में मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में एक बॉडी के पास कितने हो सकते हैं, 6, ठीक है। तो अगर हमने माना इफ वी आर कंसिडरिंग दैट सो स्पेस मैकेनिज्म वी कैन फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमने माना लेट n इज द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स इन द मैकेनिज्म। ये बेसिकली आपको अगर ये चीजें याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन वो फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ है, डेवलप कैसे हुआ है, बस वो मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से वो डेवलप हुआ है, ठीक है, जिससे आगे वाले फॉर्मूले आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मेरी आवाज स्लो तो नहीं आ रही है, तेज आ रही है, इज इट ओके? ठीक है ना। तो हमने ये माना है n क्या है, नंबर ऑफ लिंक्स। उस मैकेनिज्म में कितनी लिंक हमारे पास हैं, वो लिंक मूवेबल लिंक भी हो सकती है, वो लिंक फिक्स्ड लिंक भी हो सकती है, टोटल लिंक्स हमें काउंट करनी है, ठीक है। f हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम माना है। p1 क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है, p के आगे 1 लिखा है, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और एक पेयर जिसकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी तो कंस्टेंट कितने अप्लाई हो जाएंगे हमारे पास, कंस्टेंट कितने अप्लाई हो जाएंगे, 5। हाँ 5 कंस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, अगर हम स्पेस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो 2 लिंक जो भी कनेक्टेड होंगी एट ए जॉइंट वो बाइनरी जॉइंट होता है, 3 लिंक कनेक्टेड होंगी तो वो टर्नरी जॉइंट होता है। अच्छा, अगर आपको लिंक में पेयर काउंट करने हैं, ठीक है, जैसे 3 लिंक हमारे पास कनेक्टेड है एक पर्टिकुलर जॉइंट पे, तो उस पे पेयर कितने बनेंगे, जितनी लिंक हैं उसमें से एक कम कर देंगे, ठीक है। जितनी लिंक एक पर्टिकुलर जॉइंट पे कनेक्टेड होंगी उसमें से एक कम कर देंगे। अगर 3 लिंक कनेक्टेड है तो कितने पेयर बनेंगे, 2। अगर 2 लिंक कनेक्टेड है तो कितने पेयर बनेंगे, 1। और अगर 4 लिंक कनेक्टेड है किसी पॉइंट पर, तो एक जॉइंट पर 4 लिंक कनेक्टेड है तो कितने पेयर बनेंगे बताइए, 3 पेयर, ठीक है। 4 लिंक कनेक्टेड है तो लिंक जितनी होती है उससे एक कम बनता है, ओके। चलिए, सो P1 इज द नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर P2 की बात करेंगे तो वो नंबर ऑफ पेयर हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो लोअर पेयर जो जनरली होते हैं, कभी कभी अगर P1 ना दिया हो तो लोअर पेयर्स दे देते हैं, नंबर ऑफ लोअर पेयर जिनके बीच में सरफेस कॉन्टेक्ट होता है। और P2 नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब जो जनरली हम हायर पेयर की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें सिंस तो यही सारी चीजें इसी तरीके से P3 होगा, P5 होगा, P4 इस तरीके से। अगर P3 आ रहा है कहीं पे तो नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये सब चीजें आएंगी। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, एक मैकेनिज्म तब तक फॉर्म नहीं होती जब तक आप किसी एक लिंक को फिक्स नहीं करते। एटलीस्ट इट इज पॉसिबल टू हैव एटलीस्ट 1 लिंक मस्ट बी फिक्स्ड, ठीक है। तो अगर मैकेनिज्म की बात करेंगे, मैकेनिज्म विल बी ऑब्टेन ओनली एंड ओनली व्हेन 1 लिंक इज फिक्स्ड। तो जैसे ही एक लिंक फिक्स कर दी तो आप बताइए मूवेबल लिंक कितनी हो जाएंगी, हाउ मेनी मूवेबल लिंक विल बी देयर। टोटल लिंक हमारे पास n है, एक लिंक फिक्स करनी पड़ेगी, एक लिंक फिक्स करनी पड़ेगी किसके लिए, मैकेनिज्म के लिए। तो कितनी बचेगी, n-1। तो नंबर ऑफ मूवेबल लिंक कितनी होगी, n-1, ठीक है। याद रखना है, अगर मैकेनिज्म बनानी है तो कम से कम एक लिंक उसमें फिक्स होनी चाहिए, अदरवाइज आप मैकेनिज्म नहीं बना सकते, ठीक है, ओके। अब कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास हो जाएंगे मूवेबल लिंक के पास, मूवेबल लिंक कितनी है, n-1। तो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे, उसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई एक लिंक जो है उसके पास कितने मोशन हो सकते हैं इंडिपेंडेंट, 6 हो सकते हैं अगर स्पेस की बात करेंगे तो, ठीक है। स्पेस की बात करेंगे तो मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। और मूवेबल लिंक हमारे पास कितनी हो गई, n-1। जब मूवेबल लिंक हमारे पास n-1 हो गई तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम उस मूवेबल लिंक के कितने हो जाएंगे, जितनी मैक्सिमम हो सकते हैं उसमें नंबर ऑफ लिंक से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब टोटल जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मूवेबल लिंक की हो जाएगी वो 6 इंटू n-1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएंगी, है ना। चलिए, अब ईच पेयर हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर कुछ पेयर उसमें ऐसे होंगे जिनके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। कुछ पेयर ऐसे होंगे जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जिनके पास है,
अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास है मतलब कितने कंस्टेंट अप्लाई किए हमने, 5 कंस्टेंट अप्लाई किए हैं, तभी तो उनकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। हमने 5 कंस्टेंट्स अप्लाई किए हैं, तभी तो वो पेयर जिनकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसमें 5 कंस्टेंट्स हमने अप्लाई किए हैं, है ना। तो ये लिखा है ईच पेयर हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम विल इम्पोज 5 कंस्टेंट्स और रेजिस्टेंस इन द मैकेनिज्म। तो क्या होगा, जो टोटल मोशन थे, जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोशन मतलब मूवेबल लिंक के थे, उसमें से हमने उतनी घटा दिए जितने की कंस्टेंट्स हमने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले पेयर्स पे अप्लाई कर दिए। ठीक है, इसी तरीके से कुछ पेयर ऐसे होंगे जिनके पास 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, तो कितने कंस्टेंट इसमें अप्लाई किए हैं, 4। इसी तरीके से P3 वाले में क्या होगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, कंस्टेंट कितने अप्लाई किए हैं, 3। तो ऐसा ही चलता जाएगा, और जैसे ही 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे तो कंस्टेंट कितना अप्लाई होगा, 1। मतलब टोटल मोशन जो हो सकते थे वो n-1 इंटू 6, इतने तो मोशन हो सकते थे मैक्सिमम। लेकिन जब हम उसमें ऐसे भी पेयर हैं जिनकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसमें ऐसे भी पेयर हैं जिनके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसमें ऐसे भी पेयर हैं जिनके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो कंस्टेंट कितने हो जाएंगे उनमें। अगर पेयर जिनके 5 P1 होंगे इसके अंदर, ठीक है, P2 भी होंगे, P3 भी होंगे, P4 भी होंगे कि नहीं। थोड़ी देर के लिए कोई एक स्टूडेंट माइक ऑफ कर लो जिससे मैं और अच्छे से समझा सकूं आप लोगों को, क्योंकि तुम्हारे जब तक आंसर नहीं आएगा ना तब तक नहीं। जिनके आसपास आवाज नहीं हो रही है वो थोड़ा एक दो बंदे अपने माइक ऑफ कर लो, ऑन कर लो, सॉरी। चलिए अब देखो, हमने अभी पढ़ा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या था। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या था कि जो मैक्सिमम मोशन जो होंगे, ठीक है, मैक्सिमम रिलेटिव मोशन में से उसके कंस्ट्रेंट्स हम घटा देंगे, है ना। यही तो फॉर्मूला था, कंस्ट्रेंट घटा देंगे, यही तो फॉर्मूला था कि नहीं। जी सर, यही था ना, स्टार्ट में पढ़ा था। अगर फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैंने बात की थी तो वहां पे 6 माइनस कंस्टेंट लिखा था, 6 माइनस कंस्टेंट लिखा था, ऐसे कुछ फॉर्मूला था। और यहां मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया था, क्यों, क्योंकि जब हम एक लिंक की बात करेंगे तो 6 × 1 माइनस कंस्टेंट। इसी तरीके से अगर आपको मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है तो मैक्सिमम मोशन जो उसके पास हो सकते हैं उसमें से कंस्टेंट घटा देंगे, ठीक है। चलिए अब अगर हम स्पेस मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैक्सिमम कितने मोशन पॉसिबल है बताइए स्पेस में। 6 × n-1, इतने तो मैक्सिमम पॉसिबल है कि नहीं। 5 मैकेनिज्म बता रहा हूं, 6 × n-1 इतने मोशन पॉसिबल है या नहीं है बताइए। अगर मैकेनिज्म बनाई है आपने, 6 लिंक n लिंक उसमें कनेक्टेड हैं, और मैंने बोला कि मैकेनिज्म बनानी है तो एक लिंक को फिक्स करना पड़ेगा, और जो लिंक फिक्स हो गई भाई, जो लिंक फिक्स हो गई, एक लिंक जो फिक्स हो गई, इसका तो मोशन कोई है नहीं ना, इसका मतलब इसके तो कोई भी मोशन काउंट नहीं किए जाएंगे। तो बची n-1 लिंक हैं, एक लिंक के पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने आ जाएंगे उसमें, टोटल कितने इंडिपेंडेंट मोशन आ जाएंगे, 6 × n-1। अब इसमें होगा क्या, इसमें ऐसे भी पेयर होंगे जिनके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले होंगे ना, P1 जिनको हम बोल रहे हैं। जी सर। और इसमें ऐसे भी होंगे जिनके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ऐसे भी पेयर इसके अंदर होंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, ये तो मैक्सिमम मोशन हो गए, इसमें से अगर हम कंस्टेंट घटा देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म की कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी एक्चुअल में, ठीक है। तो कंस्टेंट कैसे घटाएंगे, अगर ऐसे पेयर जिनके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो कितने कंस्टेंट अप्लाई करेंगे इसमें, 5 या 4, 5। और ऐसे पेयर जिनके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसमें कितने कंस्टेंट अप्लाई करेंगे, 4 होंगे ना। तो क्या करेंगे, माइनस, अब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले पेयर कितने हैं, P1, तो कितना घटाएंगे, 5 × P1 घटा देंगे इसमें से जी। और इसी तरीके से 4 वाले भी होंगे तो -4 × P2 घटा देंगे। ऐसे पेयर जिनके पास 4 कंस्टेंट है, फिर -3 P2 घटा देंगे, 3 P3 घटा देंगे। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, 3 P3 के बाद 2 P4 फिर -P5, ठीक है। यहां तक घटा देंगे कि नहीं, और आपका फॉर्मूला बन जाएगा उस मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम का, फॉर्मूला आपको बन जाएगा। ये देखिए यहाँ क्या बताया था मैंने, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है मैकेनिज्म की इन स्पेस में, याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्पेस। जो आपको पढ़ना नहीं है लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि स्पेस मैकेनिज्म के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई। तो मैंने बोला
कि कितने मैक्सिमम मोशन पॉसिबल हो जाएंगे, 6 इंटू एन माइनस वन, और उसमें से रिस्टेंट या कंस्टेंट घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी 6 इंटू एन माइनस वन, ये मैक्सिमम पॉसिबल मोशन हो जाएंगे। उसमें से 5p1 मतलब 5 कंस्टेंट, और इतने कंस्टेंट वाले कितने पेयर हैं, 1। ये याद रखना है कि ये दोनों मिलाओगे तो 6 होने चाहिए, 5 और 1 6। इन दोनों को देखोगे 4 और 2, ये 5 6 हो गए, 3 3 6 2 4 6 है ना। तो नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 5 कंस्टेंट अप्लाई किए, 5p1, इसी तरीके से 4p2, इसी तरीके से 3p3 और p5। तो ये स्पेस मैकेनिज्म का फॉर्मूला है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ स्पेस मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए, तो ये फाइनली फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज हार्डली नेसेसरी टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम एज अ स्पेस मैकेनिज्म, स्पेशली ऑफ द जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर के लिए हम जनरली नहीं फाइंड आउट कर सकते। अब हमें जो बात करनी होती है वो स्पेस मैकेनिज्म में नहीं पढ़ना है, हमें जो बात करनी है वी हैव टू स्टडी अलोंग अ प्लेन मैकेनिज्म। किस मैकेनिज्म की बात करनी है हमें, प्लेन मैकेनिज्म और 2 डायमेंशनल मैकेनिज्म, ठीक है। 2D मैकेनिज्म, 3D में नहीं जाना है, हमें 2D में बात करनी है, ठीक है। सो व्हेन वी आर कंसिडरिंग द लिंक इन अ प्लेन, व्हेन कंसिडरिंग द लिंक इन अ प्लेन, अभी तक जो फॉर्मूला था वो स्पेस मैकेनिज्म के लिए था। अब हम प्लेन मैकेनिज्म की बात करेंगे और आपको यही पढ़ने हैं। अभी तक हम लोगों ने, आपने अगर जो क्लासेस मेरी इससे पहले हो चुकी थी, जो शाम को जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते थे, उसमें हम लोग हमेशा प्लेन मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, स्पेस की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्लेन में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब आप एक बात मुझे बताइए, अगर हम प्लेन की बात करेंगे तो एक प्लेन में एक लिंक के पास मैक्सिमम कितने मोशन पॉसिबल है, इंडिपेंडेंट मोशन। अगर एक लिंक की बात करेंगे जो कि प्लेन में है, ठीक है, प्लेनर लिंक की बात करेंगे, या इसको 2D मैकेनिज्म की बात करेंगे, प्लेन मैकेनिज्म या 2D मैकेनिज्म की बात करेंगे, सॉरी 2D तीन होंगे ना। 3 कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे आप अपना बोर्ड समझो, व्हाइट बोर्ड समझ लीजिए। व्हाइट बोर्ड पे मान लिया जो डस्टर है मेरे पास, वो डस्टर मैं यूज कर रहा हूँ। तो डस्टर से मैं राइट में जा सकता हूँ, लेफ्ट में जा सकता हूँ, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। डस्टर आपका प्लेन में, या बोर्ड आप अपने मोबाइल की स्क्रीन ही समझ लो, तो मैं लेफ्ट राइट में मूव कर सकता हूँ क्या, कोई प्लेन में चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। नहीं, इसी प्लेन में चल रहे हैं हम, इसी वाले में। क्या मैं ऊपर और नीचे मूव कर सकता हूँ उस प्लेन में, वाई एक्सिस में मूव कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकता हूँ। मतलब 2 इंडिपेंडेंट मोशन हो गए। और तीसरा होगा जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन, तीसरा होगा जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन। मतलब मैं इस तरीके से रोटेट करता हूँ, जैसे डस्टर को मैं इस तरीके से घुमा दूं, है ना, डस्टर को मैं साफ करता हूँ इस तरीके से, ऐसे घुमा घुमा करके साफ करता हूँ, ठीक है, डस्टर से। तो हमारी बॉडी क्या है, जेड एक्सिस के अबाउट मोशन कर रही है। क्या इसके अलावा कोई और मोशन पॉसिबल है उसका, नहीं। बोलोगे सर एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा दो, भाई एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो आपकी बॉडी प्लेन से बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, जेड एक्सिस के और वाई एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तब भी बॉडी प्लेन से बाहर निकलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि एक लिंक जो कि एक प्लेनर मैकेनिज्म में है, उसके पास मैक्सिमम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला वही हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने मैक्सिमम मोशन पॉसिबल हो सकते हैं, 3। तो यहाँ पे देखो 3 आया है, और इससे पहले वाले में कितना था, 6। अगर स्पेस की बात करेंगे तो 6 था, प्लेन की बात करेंगे तो मैक्सिमम कितना हो गया, 3। अब मैकेनिज्म बनाने के लिए एक लिंक को फिक्स किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो ऐसे मैंने क्या किया, n अगर लिंक है उस मैकेनिज्म में, तो एक लिंक फिक्स की, तो कितने मैक्सिमम कितने मोशन हो गए, 3 इंटू n-1। अब उसमें कुछ पेयर ऐसे भी होंगे जिनके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ठीक है। कुछ पेयर ऐसे भी होंगे, मतलब 2 कंस्टेंट हो जाएंगे इनके पास। कितने कंस्टेंट हो जाएंगे, 2। फिर कुछ ऐसे पेयर भी होंगे जिनके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, जी सर। जिनके पास कंस्टेंट कितने हो जाएंगे, 1 कंस्टेंट। अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 1 कंस्टेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इससे जैसे 3 आ गया, अब 3 के बाद 2 मूव करेंगे। 2 क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसे पेयर होंगे। अब हमें मैक्सिमम जो मोशन में से क्या घटाने हैं, कंस्टेंट घटाने हैं। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले पेयर कौन से होते हैं, जिनको हम लोअर पेयर बोलते हैं। लोअर पेयर होते हैं ना, सरफेस कॉन्टेक्ट जिनके पास होता है, कोई टर्निंग पेयर होता है, वो लोअर पेयर होता है आपका। तो 2 कंस्टेंट हो गए, इनटू कितने पेयर है जिनके पास 2 कंस्टेंट है, तो 2 नंबर ऑफ पेयर मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। माइनस ऐसे पेयर जिनके पास 1 कंस्टेंट है, तो P2 मल्टीप्लाइड बाई 1, मैंने 1 लिखा नहीं है यहाँ पर। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F। इसके अलावा कुछ आएगा क्या, और कुछ घटा सकते हैं,
और कुछ घटा सकते हैं कि नहीं? नहीं सर, दो ही कंडीशन। हाँ दो, क्योंकि मैंने बोला था कि तब तक चलो जब तक कि यहाँ जी पर सर, 3 जी। ना कांस्टेंट आ नहीं जाते। यहाँ पे 3 आ रहा है, अब देखो 1 और 2 को देखेंगे तब भी 3 आ गया, और 2 यहाँ पर है और पी के आगे 1 मान सकते हैं, 2 और 3 1। अब इससे नीचे तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि इससे नीचे जाओगे तो वो लिंक फिक्स हो जाएगी। वो लिंक फिक्स हो जाएगी तो वो उसको हमें काउंट करना ही नहीं है, फिक्स वाले को काउंट करना ही नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यू हैव टू कीप दिस फॉर्मूला इन योर माइंड। इस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जी निकालने के फॉर्मूले आपको आएंगे, ठीक है। अब सुन लीजिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है। एक्चुअल में अगर आप मतलब अलग अलग बुक पढ़ेंगे ना, अलग अलग बुक, तो किसी बुक में इस वाले फॉर्मूले को ग्रेवलर इक्वेशन बोला गया है या ग्रेवलर क्राइटेरिया बोला गया है। 3 इंटू एन माइनस 1 माइनस 2p1 माइनस p2, ये क्या है? ये फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए प्लेनर मैकेनिज्म या प्लेन मैकेनिज्म। 3 इंटू एन माइनस 1 माइनस 2p1 माइनस p2, ठीक है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। कुछ किताबें इसमें बोलती है कि भाई ये ग्रेवलर क्राइटेरिया है, जबकि कुछ किताबें बोलती हैं कि ये कुर्ज़बैक क्राइटेरिया है, ठीक है। कुछ बोलती है ग्रेवलर क्राइटेरिया, कुछ बोलती है कुर्ज़बैक क्राइटेरिया। तो आपको कुर्ज़बैक क्राइटेरिया इसको मानना है। कौन सा मानना है? कुर्ज़बैक। ऐसे सरतम में इसको ग्रेवलर क्राइटेरिया बोला गया है, लेकिन आपको कौन सा मानना है? कुर्ज़बैक मानना है कि ये वाला कुर्ज़बैक क्राइटेरिया है। और जब इसमें से वो वाले पेयर घटा दो जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, वो वाले पेयर अगर हटा दें, कि मतलब एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें वो पेयर है ही नहीं जिनकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मैकेनिज्म, मतलब जिसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। समझ में आया? अगर इसमें से कोई ऐसी मैकेनिज्म बनी है जिसमें केवल और केवल लोअर पेयर है, हायर पेयर नहीं है, तो क्या होगा? जब हायर पेयर नहीं है तो ये वाले पेयर तो खत्म हो जाएंगे, ये तो लोअर पेयर होंगे। कभी कभी इस फॉर्मूले को हम लिखते हैं F इज टू 3 n माइनस 1 माइनस 2l माइनस h, ऐसे भी लिख देते हैं। l मतलब लोअर पेयर, h मतलब हायर पेयर, ठीक है। तो ऐसा भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हायर पेयर होते हैं उसमें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है पेयर की, और इसमें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि ये कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करना है आपको। ये आपका कुर्ज़बैक क्राइटेरिया है, ठीक है, टू कैलकुलेट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मैकेनिज्म। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, ग्रेवलर इक्वेशन को एक दे दिया कि ग्रेवलर इक्वेशन, एक बोल दिया कि ओल्डम्स क्राइटेरिया, एक बोल दिया कि 2-3 और अलग दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला क्राइटेरिया यूज करते हैं। आपको इस वाले फॉर्मूले को कुर्ज़बैक क्राइटेरिया कंसीडर करना है, ठीक है। अब अगर इसमें से अगर कोई मैकेनिज्म है उसमें हायर पेयर नहीं है, मतलब वो वाले पेयर नहीं है जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, मतलब P2 नहीं है अगर किसी भी लिंक में, तो वो फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है ग्रेवलर में, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है? वो वाला ग्रेवलर में, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 3, हालांकि किसी बुक में ये बोला है, आपको केवल फॉर्मूला या ये आपका हो जाएगा कुर्ज़बैक क्राइटेरिया, जो यहाँ लिखा है ये वाला, ये मानना है। और जब आप P2 को हटा देंगे तो जो क्राइटेरिया आपको बनेगा वो ग्रेवलर क्राइटेरिया बन जाएगा। इसको यहाँ लिखना है, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा इधर उधर कर दिया, कोई नहीं, आपको केवल ये काउंट करना है। समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। तो क्या फॉर्मूला याद रखना है? F इजिकल्स टू 3 ब्रैकेट n माइनस 1 माइनस 2p1 माइनस p2, या F इजिकल्स टू 3 ब्रैकेट में n माइनस 1 माइनस 2l माइनस h, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है भाई। रविकांत समझ में आ रहा है? क्योंकि इससे हमने फॉर्मूले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट की थी वहां पर। अब ये चीजें समझ में आए कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में आया कैसे। अब ये होता है इसमें कि जनरली एक मैकेनिज्म जो होती है, ठीक है, ये सिंगल डिग्री, ये केवल ये जो फॉर्मूला है केवल सिंगल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया रेड लाइन से, हाउएवर मैनी ऑथर्स मेक नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन कुर्ज़बैक क्राइटेरिया एंड ग्रेवलर्स क्राइटेरिया। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं समझते। तो जो इक्वेशन इससे पहले वाली थी 3F इजिकल्स टू 3n माइनस 1 माइनस 2p1 माइनस p2, वो दोनों कोई उसको कुर्ज़बैक भी बोलता है और ग्रेवलर भी बोलता है। तो आपको फाइनली वो याद रखना है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं आगे की ओर मूव करते हैं। अब ये भी बोला गया है कि जो फाइनली जो ग्रेवलर क्राइटेरिया है, जो हम बात करेंगे। अब आपको ये याद रखना है कि हम ग्रेवलर क्राइटेरिया कौन सा मान रहे हैं? F इजिकल्स टू 3 ब्रैकेट n माइनस 1
माइनस माइन 2p1। अब आपको वो 6 वाले भूल जाने हैं, मतलब जो स्पेस मैकेनिज्म थी वो सारी चीजें भूल जानी है आपको। माइंड में केवल प्लेनर मैकेनिज्म रखनी है, बाकी सारी चीजें आपको भूलनी है। ठीक है, बोला कि भाई सर ने बोला कि प्लेनर मैकेनिज्म माइंड में जो भी क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर एसी से आते हैं, स्पेस से नहीं आता है। स्पेस मैंने आपको आइडिया दे दिया कि स्पेस मैकेनिज्म क्या होती है, किस तरीके से उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं, बट यू हैव टू कीप प्लेनर मैकेनिज्म इन योर माइंड। ठीक है, तो ये है आपका। अब ये क्या है कि अगर हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बात करते हैं, मतलब ऐसी मैकेनिज्म, तो ग्रेवलर क्राइटेरिया व्हेन अप्लाइज टू ए मैकेनिज्म विद ओनली सिंगल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जॉइंट, दैट इज P1, वेयर ओवरऑल मोबिलिटी ऑफ द मैकेनिज्म इज यूनिटी। मतलब मैंने आपसे बोला कि एक मैकेनिज्म है, ग्रेवलर क्राइटेरिया मुझे अप्लाई करना है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मैकेनिज्म ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, ऑब्टेन करने के लिए बेसिकली जो ग्रेवलर इक्वेशन है, जब हम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैकेनिज्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पेयर के बीच में और नंबर ऑफ लिंक के बीच में एक रिलेशन आता है। वी हैव अ रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ पेयर्स एंड द लिंक। वो रिलेशन पूछा जाता है और उसको कभी कभी जस्टिफाई भी करना पड़ता है, उसको कभी कभी जस्टिफाई भी करना पड़ता है, प्रूफ भी करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर ये वाला जो इक्वेशन थी हमारे पास, ग्रेवलर इक्वेशन f इज टू 3n-1 -2p1। ठीक है, तो जब हम इस इक्वेशन को उस मैकेनिज्म में अप्लाई करें जिसमें केवल और केवल P1 है, ठीक है, और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज f की वैल्यू अगर 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम f की वैल्यू 1 है, तो देखो आपको पास फॉर्मूला क्या था, f इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट n-1 -2p1, n-1 -2p1 था। और मैंने आपसे बोल दिया है अगर मैं 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैकेनिज्म के बारे में बात करता हूं तो f की वैल्यू 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मैं कंडीशन बोल दी कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली मैकेनिज्म को ट्रीट करना है मुझे, तो ठीक है, f की जगह पर 1 रख जाएगा, इस f की जगह पर 1 रख जाएगा, 3 यहां रहेगा, देखो यहां दिख रहे हो 3, n-1 यहां दिख रहा है, -2p1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, और -0 क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें P2 है ही नहीं, P2 को हमने काउंट ही नहीं किया क्योंकि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के पास आपको ये इक्वेशन मिलेगी, 3n-1 -2p1 -4 = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस P2 को ले जाएंगे इस एक तरफ और बाकी टर्म को एक तरफ रखेंगे, तो आप देखोगे दैट P2 आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी कि 2p1 इट इज इक्वल्स टू 3n-4, 3n-4। ठीक है, चलिए अब ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है 2p1 -4, 2p1 इज इक्वल्स टू 3n-4, जो आप यहां भी देख सकते हो, ये इक्वेशन नंबर 5 जो आपको दिख रही है, ये ग्रेवलर का क्राइटेरिया है प्लेन मैकेनिज्म के लिए हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। अब यहां से क्या प्रूफ होता है, ठीक है, यहां से क्या प्रूफ होता है देख लेते हैं। देखो भाई, पेयर की बात करते हैं, पेयर छोड़ देते हैं, हम लिंक काउंट करते हैं। मैंने n की वैल्यू कितनी रखी, 1। इनिशियली आपके पास बन रहा है 2p1 इट इज इक्वल्स टू 3n-4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, n की वैल्यू कितनी रखी, 1। जैसे ही n की वैल्यू यहां 1 रखी तो 3 × 1 कितना हो गया, 3 -4, तो 3 -4 कितना हो गया, -1। क्या ये पॉसिबल है, लेफ्ट साइड राइट साइड पॉसिबल हो सकती है क्या, ये तो माइनस आ रहा है और ये लेफ्ट में पेयर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है। अब मैंने क्या किया, n की वैल्यू 2 पुट की, n की वैल्यू कितनी पुट की, 2। जैसे ही n की वैल्यू 2 पुट की तो क्या हो गया, 3 × 2 6 -2 4 दैट इज 2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 2। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, P1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2p1 इज इक्वल्स टू 2, तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई कि नहीं, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगली बात फिर करते हैं, अब मैंने n की वैल्यू 3 रख के देखी, मतलब 1 से कुछ नहीं बना, 2 से थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला। अब n की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना, 3 × 3 9 -4 5 हो गया। क्या फिर P1 की वैल्यू कितनी आएगी जब 3 रखेंगे, तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 आएगी। क्या पेयर पॉइंट में हो सकता है क्या, नहीं सर, नहीं हो सकता। इसका मतलब 3 के साथ भी ये इक्वेशन जस्टिफाई नहीं हो पा रही है। n की वैल्यू 4 रख के देखो, 4 × 3 12 -4 8
P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैकेनिज्म ऑब्टेन करने के लिए केवल और केवल हमारे पास इवन नंबर ऑफ लिंक्स होनी चाहिए. टू गेट 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वी शुड हैव इवन नंबर ऑफ लिंक, और मिनिमम नंबर ऑफ जो लिंक होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए. ठीक है, ठीक है. वैसे 2 से काम नहीं चल पाएगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स वुड बी 4, क्योंकि एक पेयर से मैकेनिज्म नहीं बन सकती. ठीक है, सर. तो यही आपको याद रखना है. स्टेटमेंट पूछा जाएगा जस्टिफाई दैट 1 डिग्री ऑफ मैकेनिज्म हैविंग लोअर पेयर कैन नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ लिंक. तो आपको ये वाली लाइन लिखनी ही पड़ेगी, यहां तक प्रूफ करना पड़ेगा. फिर n की वैल्यू 1 रख के दिखाओगे, फिर 2 रख के दिखाओगे, फिर 3 रख के, फिर 4 रख के, और आप देख लो कि जब हम ऑड नंबर लिख रहे हैं देन वी कैन नॉट हैव a particular mechanism. So for making a mechanism with 1 degree of freedom having lower pair we should have only or even number of links. ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? तो यहाँ लिख दिया, so 1 degree of freedom joint cannot have odd number of links. ठीक है, 1 degree of freedom mechanism cannot have odd number of links. That is minimum number of link कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए. ये भी पॉसिबल होना चाहिए, तभी ये क्राइटेरिया पॉसिबल है. ठीक है, जी इतना आ सर. गया समझ में? चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है. ये मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि ये पिछली बार 1-2 बार से ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में. ठीक है, तो यू हैव टू कीप दिस स्टेटमेंट इन योर माइंड. जस्टिफाई करने के लिए भी बोला जा सकता है, तो आपको इस तरीके से जस्टिफाई करना है इसको. ठीक है, चलिए. अगर फॉर अ 6 चेन जो मैकेनिज्म होती है वाट, याद रखना है 6 चेन जो होती है, एक होती है वाट मैकेनिज्म जिसमें टर्नरी लिंक को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं, और एक स्टीफेंसन मैकेनिज्म होती है, वो भी 6 बार मैकेनिज्म होती है जिसमें टर्नरी लिंक को आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड. ठीक है, टर्नरी लिंक डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, तो वाट में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती हैं. जैसे देखो ये टर्नरी लिंक बन रही है, एक ये वाली, ये आपके मतलब आप इसको पढ़ना चाहें पढ़ सकती है, थोड़ा एडिशनल है ना. ये जरूरी नहीं है आपको याद करना है, आप इसको पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ कि अगर वॉट मैकेनिज्म है वो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, स्टीफेंसन मैकेनिज्म भी, सॉरी नॉट 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वॉट मैकेनिज्म और स्टीफेंसन मैकेनिज्म ये दोनों जो हैं वो दोनों 6 चेन मैकेनिज्म है. ठीक है, 6 चेन. तो कभी कभी अगर पूछा जाए तो 6 चेन मैकेनिज्म है वॉट और स्टीफेंसन. वॉट वाले में जो 2 टर्नरी लिंक हैं उनको हम डायरेक्टली अटैच कर देते हैं, और जबकि स्टीफेंसन में टर्नरी लिंक को एक अलग लिंक के थ्रू डायरेक्टली अटैच नहीं किया जाता है, इनडायरेक्टली अटैच कर दिया जाता है. ठीक है, चलिए. तो अभी आपको ये जो इक्वेशन है, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला 2p1 माइनस दैट इज इक्वल्स टू 3n माइनस 4, और एक फॉर्मूला और होता है n इज इक्वल्स टू 2p माइनस 4. n इज इक्वल्स टू 2p माइनस 4 होता है क्या? 3n माइनस 1. n इज इक्वल्स टू 2p माइनस 4. जस्ट वेट अ मिनट. यस सर, यही होता है. L इक्वल टू 2p माइनस 4. ये मैंने करवाया था ना, उसमें करवाया था, शायद याद आ रहा हो तुम्हें. जब क्लास डिस्कस की थी तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था. एन एच 2p माइनस 4 था, यही था ना? आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है कि यही होगा. यस सर, यही था. तो sir. ये दो जो इक्वेशन है आपको याद रखनी है. एक काइनेमेटिक चेन बनाने के लिए 2 शर्तें हैं. दीज आर द 2 कंडीशंस फॉर अ काइनेमेटिक चेन. पहली बात तो जो मैंने आपसे बोली थी 2p1 या 2p बोल सकते हैं. 2p इज इक्वल्स टू 3n माइनस 4. एक तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और एक n इज इक्वल्स टू 2p माइनस 4. 2p माइनस 4 ये वाली कंडीशन. ये दोनों कंडीशन है किसी भी एक चेन को काइनेमेटिक चेन बनाने के लिए. ये 2 शर्तें याद रखनी है. कई बार क्वेश्चन इससे डायरेक्टली एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे गए हैं. ठीक है, आप लोग देखोगे ना जो मैंने लेक्चर दिया उसमें कई बार पूछे गए हैं, कई बार, सो मेनी टाइम्स दीज आर क्वेश्चन बार. ठीक है, ओके. तो आपको ये रट लेने हैं दोनों के, सर ये वाले हमको याद हो गए. और अगर भूल जाओ कि सर ये वाला रिलेशन हम भूल गए हैं, तो सीधे जो 3n माइनस 1 में उसमें
एफ की वैल्यू 1 रख के पुट करके डायरेक्ट निकाल लेना, तो आपको ये याद हो जाएगा। ये तो आपको याद करना है, एन इज टू पी माइनस 4, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस इन योर माइंड। ठीक है, चलिए, तो आपको सिंपली फॉर्मूले कुछ पता है, और आगे देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा एस एस रतन जो बुक शायद अवेलेबल है, एस एस रतन में क्या है, उनकी जो राइटर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है, ठीक है, उन्होंने जो बुक लिखी है थ्योरी ऑफ मशीन, उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया है। ठीक है, ये हर किसी ने ये एस एस रतन साहब ने ये डराइव किया है एक रिलेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का, और ये केवल और केवल तभी एप्लीकेबल होगा, नंबर ऑफ ज्वाइंट लिंकेज की नंबर ऑफ, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब केवल इसमें लोअर पेयर इसी होंगे। ठीक है, ओनली लोअर पेयर पॉसिबल। P1 अगर पॉसिबल है तभी है, P2 अगर है इसमें तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या है, F इजिकल्स टू एन माइनस ब्रैकेट में 2l+1। ठीक है, या P1 और एक होता है P1 इजिकल्स टू एन ब्रैकेट में l-1। याद रखना है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम F इजिकल्स टू एन माइनस ब्रैकेट 2l+1, और ये तो हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का, और नंबर ऑफ पेयर P1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है n माइनस l+1, n प्लस l-1। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ पर l क्या है, तो यहाँ पर l जो है वो नंबर ऑफ लूप्स है। क्या है, नंबर ऑफ लूप। अब लूप आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल पढ़ा है कि नहीं, उसमें लूप क्या होता है, एक बंद कमरा लूप बनाएगा कि नहीं, है ना, बनाएगा कि नहीं बनाएगा भाई। 4 बार चेन पढ़ा है, 4 बार चेन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया होगा। एक मिनट रुक जाए, 4 बार चेन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एक 4 बार चेन इस तरीके से आप बंद कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं, तो बताइए इसमें कितने लूप हो जाएंगे, हाउ मेनी लूप्स यू विल बी हैविंग। एक लूप बनना है, देखो एक क्लोज सर्किट बनना है कि नहीं बन रहा है इसमें, तो कितने लूप हो जाएंगे इसमें, एक, और सारे टर्निंग पेयर है, मतलब सारे के सारे कैसे पेयर हैं, लोअर पेयर। अगर मैंने क्या किया, इसमें एक और लूप बना दिया इस तरीके से, कौन है, ठीक है, अगर इस तरीके से बना दिया तो क्या होगा, कितने लूप हो जाएंगे, 2 लूप हो जाएंगे। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो सिंपल है कि वो मैं बता दूंगा। तो ये जैसे ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लूप के हिसाब से किस तरीके से आंसर निकालते हैं, बस याद रखना है। ये जो फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम F इजिकल्स टू n माइनस ब्रैकेट में 2l+1, ये तब एप्लीकेबल है जब आपके पास मैकेनिज्म में केवल और केवल लोअर पेयर हैं। लोअर पेयर मतलब जिनके बीच में सरफेस कॉन्टैक्ट है, ठीक है, लाइन हायर पेयर काउंट नहीं करेंगे इसमें। और अगर आपको पेयर के बीच में और लिंक के बीच में एक फॉर्मूला निकालना है तो दैट इज इक्वल्स टू n, तो नंबर ऑफ लिंक हो जाएंगे, तो P इज इक्वल्स टू P1 इज इक्वल्स टू n माइनस l, सॉरी n, P1 इज इक्वल्स टू n प्लस l-1। ये 2 रिलेशन याद रखने हैं। अब देखो समस्या कहाँ आती है कि ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं ना हमारे पास, ये एम्पेरिकल फॉर्मूले वहां प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कभी कभी, क्योंकि जब इन फॉर्मूलों को ड्राइव किया गया था, ये एम्पेरिकल रिलेशन है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के, तो इन फॉर्मूलों को जब हम यूज करते हैं ना, तो इनमें कहीं भी जो लिंक हम यूज कर रहे हैं उन लिंक की लोकेशन, उन लिंक का साइज कहीं भी कंसिडर नहीं किया गया है। समझ में आ रहा है, उन लिंक का कि उस लिंक की लेंथ कितनी होनी चाहिए, उस लिंक की लोकेशन या पोजीशन कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं दिया गया है। तो कभी कभी ये फॉर्मूले फेल भी हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, कभी कभी ये फॉर्मूले फेल भी हो जाते हैं। इसीलिए आपको याद रखना है, एक बात हमेशा याद रखनी है, जो कुछ कभी कभी इनके एक्सेप्शन जो होते हैं, अपवाद जो होते हैं, वो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप इस, यहां दिख रहा है आपको एक लेफ्ट में और एक ये राइट में है, ठीक है, तो जो लेफ्ट में मैकेनिज्म आपको दिख रही है और एक राइट में दिख रही है, देखो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम दिख रहा है कि नहीं। बस इसमें क्या है, जो लिंक 4 है इसको लेफ्ट साइड में टिल्ट कर दिया गया और इसमें राइट साइड में टिल्ट कर दिया। ये पैरेलल बना दी गई है, 2 4 5 पैरेलल मैकेनिज्म बना दी गई है, जबकि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है।
ठीक है। तो जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, अप्लाई करोगे, तो देखो पेयर काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे पेयर कितने बन रहे हैं, देखो एक लिंक काउंट करेंगे, जितनी भी फिक्स लिंक होती हैं सारी फिक्स लिंक को हम 1 काउंट करते हैं। ऑल फिक्स लिंक्स आर कंसिडर्ड एज 1। चलो यार आज के लिए इतना छोड़ते हैं ना, यहाँ से कल डिस्कस करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो बाकी पार्ट है वो यहाँ से फिक्स करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है, ठीक है। फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का। गलत नहीं करना है बिल्कुल भी, ओके। चलिए तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं।